Friends, I am Ajay Kumar Thakur, live from Suchna Bhavan, Bokaro for chemistry class. In last class, I was discussing about the unit of rate constant. So, again I think you have just completed that one. The unit of rate constant. You know, it's my third class for chemical kinetics. And discuss rate of reactions, instantaneous reaction, average reaction, and I am discussing now again that is a unit of rate constant for different types of order of reaction. So for zero order reaction, what will be the unit of rate constant? Whenever writing the expression, that is rate is equal to K A per power 0, because order of reaction is the sum of power of concentration of reactant. So here order of reaction is 0. So what will be the unit of rate constant? So it will be K is equal to rate by A0, and this will be 1, that is equal to rate, and you know very well the unit of rate is mole per liter per second. Because there will be one question in your board examination as well as in any academic examination, what will be the unit of either zero order reaction, first order reaction, second order reaction, third order reaction, and nth order reaction. So it is very easy how to you write the unit of rate constant. Similarly, if you are writing the unit of first order rate constant for first order reaction, then rate is equal to K A per power 1. Order is 1. Then K will be rate by A. And rate is mole per liter per second. So you can write mole per liter per second by the concentration of A, and the unit of concentration is mole per liter. So it will be mole per liter. ये कैंसिल हो जाएगा. Then it will be per second. So what will be the unit of first rate constant for first order reaction? It will be per second. Similarly, for second order reaction, for second order, rate is equal to K A per power 2, and K is equal to rate by A per power 2. So rate is mole per liter per second, and A, that is the concentration, unit of concentration is mole per liter per power 2. So 1 mole per liter will be cancelled, ये कैंसिल हो जाएगा. Then ये जो है मोल, जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखते हुए आप सॉल्व करें कि ये मोल जब आप यहाँ ला रहे हैं तो ये क्या हो गया, मोल पर मोल, और लीटर -1 है, तो जब अपर पार्ट में ये आएगा तो ये क्या हो गया, लीटर पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड. एक चूंकि ये कैंसिल हो गया है, तो इस तरह से आप
ये सेकेंड ऑर्डर का भी जो यूनिट है रेट कांस्टेंट का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसा 1.5 हो रेट, अगर रेट इक्वेशन रेट इज के a पर पावर 1/2 ये हो, तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? चलिए इसको देखते हैं। तो के क्या हो जाएगा, रेट बाय a पर पावर हाफ। फिर वही रेट जो है वो हमारा मोल पर लीटर पर सेकेंड है, और ये हो गया मोल पर लीटर पर पावर हाफ। चूंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है। और प्रैक्टिस अगर आप, चूंकि हाफ मार्क्स आपको ऐसे भी है, इफ यू आर नॉट राइटिंग द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन then it will be deducted, mean half marks can be deducted. So whenever you are solving this, the mole per power half, here mole is 1, so 1 if you are calculating, the 1 minus 1/2, it will be 2 minus 1/2, that is 1/2. So it's a minus half, it's a 1, so unit will be mole per power half, and liter it's a minus 1 into half, that is minus 1/2. It's here it's a minus 1, तो ये minus 1 है और ये अपर में आएगा तो ये क्या हो गया प्लस, that is plus 1/2। तो ये सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा minus 1/2, तो so liter will be minus 1/2 and second per second, so it will be the unit for हाफ ऑर्डर रिएक्शन। अब हम एक देखते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन मेनी टाइम्स इट वाज इन नीट एग्जामिनेशन और इन IIT एग्जामिनेशन और इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। We are writing the expression, that is rate is equal to k a per power n. So k is equal to rate by a per power n, and rate is mole per liter per second by mole per liter per power n. It's a concentration. So whenever you are calculating, it's a mole per power n, or here mole is per power is 1. So if you are solving it, the 1 minus n, because here it's a n is in plus, so mole per power 1 minus n, and liter is minus 1 into n, minus n, or here liter is in minus 1, it comes in numerator, it will be plus n, then you can write liter n minus 1, liter n minus 1 per second. So it will be the unit of rate constant for nth order. Now just finding the expression for rate constant of zero order reaction. As in earlier classes, I was discussing that what is zero order reaction. Zero order reaction means the reactant whose concentration is 0. So when we are calculating the rate constant for zero order reaction, mean a reaction whose concentration doesn't depend upon the rate of the reactant.
मीन रेट डजंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आप ऐसे इसको कर सकते हैं, रिएक्शन इन विच रेट doesn't depend upon the concentration of the reactant is called zero order reaction। तो जीरो ऑर्डर यानी जब आप लिखते हैं इसको तो रेट इज इक्वल टू के ए पर पावर 0 और रेट इज इक्वल टू माइनस dx बाय dt इज इक्वल टू के ए पर पावर 0 और इक्वल टू के। अब यहां से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी के जो होगा रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा। तो लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन A is A to P, A initial concentration and P is product. This is reactant and product. When time is 0, whenever reaction is starting, mean T is 0, let us consider कि the initial concentration of A is A mole per liter. So concentration A, on that time product will be 0. After time t, mean whenever reaction is started, extent of x is reacted, the initial concentration will be A minus x and it will be x, product will be x. Then writing the rate equation, mean minus dx by dt is equal to k a minus x per power 0, because according to the law of mass action we know very well कि rate is directly proportional to the concentration of reactant. So according to rate expression, minus dx by dt is equal to k a minus x per power 0, it will be k, or minus dx is equal to k dt. Now integrating both side, जब हम ये दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, now integrating both side we get minus dx by equal to k dt. It is a constant and you know very well ये जो इंटीग्रेशन है, चूंकि मैथ्स में आप कैलकुलस में इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, खास करके मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इंटीग्रेशन आप कैलकुलस में बनाए होंगे, बट फॉर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बता दूं कि कुछ ही पार्ट्स हैं जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं और होप्स हो कि शायद ये आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये dx जो है, द इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, सो इट विल बी माइनस x, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, dx का जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन जो dx का हो गया वो x और dt यानी k t, dt का हो गया t, और आफ्टर इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करते हैं, दैट इज i, इंटीग्रेशन कांस्टेंट i। इसको हम बनाते हैं इक्वेशन 1, माइनस x इज इक्वल टू के टी प्लस i। अब क्या करते हैं, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन हमें जो है इसका सॉल्व कर रहे हैं, तो रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर का जो होगा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होगा, व्हाट विल बी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब इस इक्वेशन में आइए कि व्हेन टाइम इज 0, t इज 0, then x will be 0, then putting the value of x and t in equation 1,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो KT है यानी टाइम अगर मेरा 0 है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x 0 यहाँ पे t 0, तो I जो होगा ये 0 हो जाएगा, I इक्वल टू 0। इसको सेकंड इक्वेशन बना देते हैं। अब क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1, पुटिंग the value of I in equation 1, तो यहां I 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा माइनस x इज इक्वल टू के टी, और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस x बाय टी, k इज इक्वल टू माइनस x बाय टी। अब हम देखते हैं, यानी x जो हमारा है वो क्या है, x इज इक्वल टू जो है दैट इज यू कैन राइट a नोट माइनस a t, यानी इनिशियल जो a माइनस x जो मैंने लिखा था a नोट माइनस a t, यहां पे t लिख सकते हैं, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये जो k इज इक्वल टू एक्स बाय टी आया हमारा, तो इस बेसिस पे अब हम कैलकुलेट करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कि रिएक्शन का कंप्लीशन जो आफ्टर 50% रिएक्शन इज गोइंग टू कंप्लीट, व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट, यानी 50% कंप्लीशन के बाद जो हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। तो यानी इफ t इज इक्वल टू t हाफ, देन x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a बाय 2। इस एक्सप्रेशन में जब हम लिखेंगे तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, यानी यहां t है और ये x का वैल्यू है a बाय 2 बाय t हाफ, मीन यहां अगर कैलकुलेट करें तो t हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया a बाय 2k। It means whenever we are calculating the rate constant for zero order reaction, क्योंकि वहां मैंने जो नेगेटिव साइन एक रखा था तो वो इस साइड यानी मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा, तो वो जो है ऑलरेडी वहां पे इंटीग्रेशन के जो हम करके कैलकुलेट किए थे तो वो आएगा k इज इक्वल टू एक्स बाय टी। तो वहां जो हाफ लाइफ हमने कैलकुलेट किया इस एक्सप्रेशन से, तो दैट इज t हाफ इज इक्वल टू a बाय 2k। इट मीन कि हाफ लाइफ पीरियड इज directly proportional to the initial concentration and inversely proportional to the rate constant। तो इस बेसिस पे जो है आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड और रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि whenever we are plotting a graph between time and concentration, इस जीरो ऑर्डर का जो एग्जाम्पल है वो आप दो एग्जाम्पल आप माइंड में रख सकते हैं, दैट इज एंजाइम रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ कम टू द पॉइंट कि व्हेन वी आर प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन टाइम एंड कंसंट्रेशन, इट विल बी this reactant and product। इसमें एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, थिंक अबाउट दैट कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर इज
zero order reaction. Why? Think about that and write in comment box. Why the thermal decomposition of ammonia on platinum surface at high pressure is an example of zero order reaction. अब हम देखते हैं mathematical expression for first order reaction. Mean if order is 1, then what will be the rate constant for first order reaction? सीबीएसई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए और न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होंगे आपके, दैट विल बी मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जामिनेशन, दैट इज इन आइदर सीबीएसई एग्जामिनेशन और नीट और इन आईआईटी. इट कम्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं. तो नाउ डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट rate constant for first order reaction. Rate constant for first order reaction. Mean when order is 1, what will be the unit of what will be the rate expression of rate constant, यानी K जो है first order reaction के लिए क्या होगा. तो let us suppose कि A is P. तो इसके लिए जब आप रेट लिखते हो when RT यानी रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस dA बाय dt is equal to KA because here order is 1. Mean rate is minus dA by dt is equal to rate constant, that is K A per power 1. Let us consider कि A is P. तो when T is equal to 0, the initial concentration यानी A, it will be A and product is 0. Mean A mole of concentration of A is A mole per liter. So time is 0. The concentration of A is small a, and on that time P is 0. And when time is equal to T, it's A minus X and it will be X. ये प्रोडक्ट जो है ये आ गया. अब इसके रेफरेंस में जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रेट is equal to minus dx by dt is equal to K, sorry, rate is directly proportional to the concentration of reactant. तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि माइनस ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने लिखा है dA बाय dt इज इक्वल टू K, A की जगह पे क्या हो गया यहाँ पे A माइनस X. तो यहाँ A यानी A जो है हमारा, तो X मोल से यानी मैथमेटिक्स जब हम कर रहे हैं X के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं स्मॉल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन व्हेन टाइम इज t, तो क्या हो जाएगा dx, इसको हम लिख सकते हैं dx बाय dt मीन माइनस dx बाय dt इज इक्वल टू K A माइनस X. इसको एक साइड लाते हैं, ये होगा माइनस dx बाय A माइनस X इज इक्वल टू K dt. अब अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट करते हैं. तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो इंटीग्रेटिंग both side we get, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस dx बाय A माइनस X इज इक्वल टू K dt, जिसको ये इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं. अब हमें पता है कि 1 बाय X
1 बाई एक्स डी एक्स का जब आप इंटीग्रेशन निकालते हो, इट्स लॉग एक्स। तो यहां पे क्या है, dx बाय a माइनस एक्स। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई, के टी प्लस आई, इक्वेशन 1। आई फिर क्यों यहां रखा, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसमें ऐड करते हैं, दैट्स व्हाई द इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a माइनस एक्स जो होंगे वो ln a माइनस एक्स और dt का t, चूंकि डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू t, वेयर I is integration constant, I is integration constant। अब क्या करते हैं यहां पे कि ये जो टाइम है, when टाइम t is equal to 0, then x will be 0। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ln a इज इक्वल टू t, यहां 0 हो जाएगा, दैट इज I, इक्वेशन 2 मीन I इज इक्वल टू माइनस ln a। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1, इट विल बी माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, आई की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस ln a, और यू कैन राइट के टी इज इक्वल टू, ये इसको इस साइड ले आए, ln a माइनस ln a माइनस एक्स, और यू नो वेरी वेल log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n, चूंकि लॉगरिथमिक टर्म में जो आप ये जानते हो कि log m बाय n जो होता है वो है log m माइनस log n। तो यहां पे क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू ln a बाय a माइनस एक्स, और k इज इक्वल टू 1 बाय t इंटू ln a बाय a माइनस एक्स। अब ये जो नेचुरल लॉग है, जब इसको लॉगरिथमिक टर्म में हम मेंशन करते हैं तो मल्टीप्लाइंग बाय 2.303, सो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 बाय t log a बाय a माइनस x। This is expression of rate constant for first order reaction। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि चूंकि log a, ये a जो है यानी a नॉट और ये a माइनस एक्स फाइनल कंसंट्रेशन है, मीन at। You can also write it k is equal to 2.303 by t log a naught by a t। Next equation is 3। मीन ये आपको याद भी रखना, क्योंकि इसी पे जो है न्यूमेरिकल, whenever you are solving numerical for first order reaction, the rate constant for first order reaction is k is equal to 2.303 by t log a by a minus x। Now calculating the half life period। half life period, it is the time, मैंने जैसा कि पहले जीरो ऑर्डर में बताया कि it is the time required for the completion of 50% of the reaction, that is called its half life period।
and half-life period doesn't depend upon the initial concentration of the reactant. So whenever you are calculating the half-life period for first order reaction, the T will be T half. Then ये जो A माइनस x है, x क्या हो जाएगा? A by 2. Then ये जो इक्वेशन 3 है हमारा, यहाँ जो मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमने यहाँ लिखा है, इसमें जब हम मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू 2.303 बाय T हाफ log A बाय A माइनस x की जगह पे क्या हो गया? A बाय 2. ये x जो है, that is x will be when time is half, then x will be the half of the initial concentration. That's why x is equal to A by 2, and putting the value in expression of rate constant for first order. So you can write K is equal to 2.303 by T half log, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा? A by 2A minus A, 2A minus A that is A by 2. ये A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? K is equal to 2.303 by T half log 2. और log 2 का जो वैल्यू होता है, जब आप log टेबल चार्ट देखेंगे तो log 2 is equal to 0.3010. खास करके मैं बायो स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि इफ you know the only value of log 2 and log 3, then you can calculate maximum numericals. क्योंकि अगर ये 2 का वैल्यू अगर चूंकि चार्ट, जब तक आपको चार्ट मिलेंगे एग्जाम पेपर में, जो लॉगरिथमिक चार्ट है वो आपको मिलेंगे, आप उसमें देखेंगे कि log 2 का वैल्यू कितना है, log 3 का वैल्यू क्या है ना? तो अगर सिर्फ आप ये 2 वैल्यू याद रखते हैं तो आप log 4 कैलकुलेट कर सकते हो, log 5, log 6, एक 7 नहीं होगा, log 8, log 9 और log 10. log 10 कितना होता है? 1. तो वो इजीली जो है, यानी log 3 जो है 0.4771, ये 2 वैल्यू कोशिश करें कि आपके माइंड में सेट हो जाए कि log 2 इज 0.3010 एंड log 3 इज 0.4771. तो यहाँ पे ये वैल्यू log 2 का जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू 2.303 बाय T हाफ log 2 कितने हो गए? 0.3010 और K इज इक्वल टू 0.6, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 बाय T हाफ, और T हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी 0.693 बाय K. दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हाफ लाइफ आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ इस रेट एक्सप्रेशन से यहाँ से क्या करेंगे? आप पहले कैलकुलेट कर लेंगे K यानी रेट कांस्टेंट, और जब आप रेट कांस्टेंट आप कैलकुलेट कर लेंगे, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ K यू कैन कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मीन कि आपको एग्जामिनेशन में जो आते हैं नॉर्मली, जो एकेडमिक एग्जाम्स में होते हैं, वो 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से होते हैं. तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो अगर आपको सॉल्व करने हैं कि रेट कांस्टेंट कैसे होगा, वो क्वेश्चन आता है तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आप. और उसके बाद जो हाफ लाइफ जो है वो हाफ लाइफ यहाँ पे वैल्यू जो है हाफ लाइफ इसका 0.693 बाय K. लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपको जो है यही एक्सप्रेशन जो है आपको याद रखने होंगे कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 बाय T log A by A minus X and half life is 0.693 by K. अब क्या करते हैं कि अगर हम इसमें इसका एग्जाम्पल भी है, बहुत कुछ 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आते हैं कि न्यूक्लियर डिके जो है आपका, न्यूक्लियर डिके रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन.
population of growth, if there is a no change in birth and death rate, is example of zero order reaction. Mean if there is a no change in birth rate or death rate, then you can write the population will be first order reaction. अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कि जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। रिएक्शन, कंसंट्रेशन, रिएक्शन कंसंट्रेशन और रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट इसके वर्सेस में ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है। Whenever you are plotting the graph between the reaction concentration and reaction rate। अब एक सेकेंड ग्राफ है कि अगर आप टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, इसके अगेंस्ट में ग्राफ अगर प्लॉट आप करते हैं, ये हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया रिएक्टेंट। ये ग्राफ व्हेनेवर यू आर प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन, इसमें और डिटेल में हम जाएंगे ये ऐसा क्यों होता है, रिएक्शन और कंसंट्रेशन फॉर द रिएक्शन एंड टाइम, देन द ग्राफ विल बी लाइक दिस। एंड अगेन इफ यू आर प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड लॉग ए, जो फाइनल कंसंट्रेशन है लॉगरिथमिक, यानी AT लिख सकते हैं, यानी या तो आप A माइनस एक्स लिखे, नहीं तो आप AT लिखे। तो ये जो ग्राफ आएगा लाइक, जहां स्लोप कैलकुलेट करते हैं आप, तो जो स्लोप होगा माइनस के बाय 2.303। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर का जो है, जो फर्स्ट ऑर्डर पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन फिक्स्ड है कि आपको आइदर या तो एकेडमिक में भी या नीट में भी और IIT में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा, और वो भी जीरो ऑर्डर पे। ज्यादातर क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो जीरो ऑर्डर पे आ रहे हैं। तो नाउ अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए जैसे एक क्वेश्चन, हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A first order reaction is 75% complete in 60 minutes. सबसे important question है minutes. Find the half life of this reaction. Half life of half life of this reaction. A first order reaction is 75% complete in 60 minutes. Find the half life of this reaction. अब यहाँ क्वेश्चन में जैसे आपको लॉग की जो जरूरत पड़ेगी, जैसा मैंने कहा था कि log 2 और log 3, ये तो आप आई होप कि आपको माइंड सेट भी हो गया होगा। 3010 एंड log 3
इज 0.4771। अर्लियर क्लासेस में थोड़ा सा लॉगरिथमिक तो आप टर्म्स जान ही रहे होंगे। आज जैसे कभी अगर आपका लॉग, ये दोनों अगर आपको माइंड में सेट है तो मैं एक चीज यहाँ पे हिंट्स दे दूं कि अगर इफ यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड कम्स log 4 देन यू कैन राइट log 2 to the power 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 log 2। अब आप देखिए log 4 था यहाँ पे और log 2 का वैल्यू 0.3010। ये क्यों हुआ? क्योंकि log m पर पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। log m इंटू n जो होता है वो होता है log m प्लस log n, और एक है log m बाई n अगर आपका है तो इट इज log m माइनस log n। ये इसको थोड़ा सा माइंड में आप सेट कर लें। और और ये जो दो वैल्यू मैंने बार बार मैं इसको कह रहा हूँ log 2 और log 3 जो है इसको माइंड में सेट करें। जैसा कि मैंने अभी log 4 को यहाँ कैलकुलेट किया तो इट्स अ log 2 to the power 2, तो 2 log 2 का वैल्यू 0.30, तो क्या हुआ कि ये टाइम आपको सेव करेगा। ऐसे ही अगर log 5 आ जाता है तो एक आप ये भी देख लें कि अगर जैसे log 5 का सपोज कि log 5 आ गया तो यू कैन राइट log 5 into 2 by 2 यानी 10/2, log 10/2 तो log m by n टर्म में आ गया तो log m minus log n हो जाएगा। तो log m minus log n होगा तो log 10 minus log 2 एंड log 10 minus log 2, तो log 10 का वैल्यू 1 और log 2 का वैल्यू फिर वही 0.303 3010। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो log 5 का वैल्यू। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 60 मिनट, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। अब यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा है, लेट सपोज करते हैं कि लेट अस सपोज कि इनिशियल कंसंट्रेशन इज A0 एंड फाइनल कंसंट्रेशन जो मेरा है, फाइनल कंसंट्रेशन सपोज कर लेते हैं ये क्या हो जाएगा 80। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिएक्शन इज 75% कंप्लीशन दिखा रहा है, कंप्लीट हो चुका है। तो मीन ये 80 को अगर हम कैलकुलेट करें तो 80 जो a माइनस एक्स मैंने वहां पे बताया था ये क्या हो जाएगा A0 माइनस 75% ऑफ है यानी 75/100 A0। 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन था उसका 75% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नाउ यू सॉल्व इट, ये कितना हो जाएगा 100 A0 माइनस 25 75, तो ये हो जाएंगे 25 A0 बाय 100। यानी इसको आप लिख सकते हैं या तो यहीं पे रहने दें जो कि आगे डायरेक्ट आप लिख सकते हो, या नहीं तो लिख सकते हैं 1/4 A0, 25 4 A0 लिख सकते हैं। अब आते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर, जो फर्स्ट ऑर्डर का हमारा रेट एक्सप्रेशन है यानी k कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें पहले। तो k इज इक्वल टू क्या हुआ 2.303/t log A0 बाय 80, और A0 क्या था a और 80 a माइनस एक्स, आप ये भी लिख सकते हैं, या a बाय a माइनस एक्स मीन 2.303/t log a बाय a माइनस एक्स, और a यानी A0 या a माइनस एक्स की जगह पे 80, ये आप मेंशन कर सकते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 बाय टाइम कितना है 60 मिनट यानी 60 log A0 बाय 1/4 A0। ये A0 कैंसिल हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 2.303/60 log 4। देखिए जो कि मैंने यहाँ पे बताया था अभी log 4, तो log 4 यानी ये फिर हो जाएंगे वही log 2 to the power 2 करेंगे तो वो 2 log 2
यानी log 2 का वैल्यू जब आप यहाँ पुट करते हैं तो 2 इंटू 0.3010 वो log 2 की पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा। तो वो वैल्यू यहाँ पे आप अगर पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाय 60, यानी तो फिर आप लॉग चार्ट आपको देखना पड़ेगा 60 इंटू 2 इंटू 0.3010। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको राउंड अप 2.31 इंटू 10 टू द पावर -2 पर मिनट। अब देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का जो हमने यूनिट भी आपको बताया था तो पर सेकंड, यानी अगर सेकंड टाइम जो है वो सेकंड में है तो पर सेकंड, मिनट में है तो वो पर मिनट, आवर में अगर होता है तो पर आवर, और अगर ईयर में होगा तो पर ईयर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पर मिनट, यानी के कैलकुलेट हो गया। अब चूंकि हमको कैलकुलेट क्या करना है, हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ जो है यानी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के, और के हमने कैलकुलेट किया तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय 2.31 इंटू 10 टू द पावर -2 पर मिनट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिनट में आ जाएगा, यानी टाइम जो है ये राउंड ऑफ, जब आप कैलकुलेशन में जाएंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो राउंड ऑफ 30 मिनट्स जो है वो आपको टाइम मिल जाएगा। यानी इस तरह से जो है आप जो मैथमेटिकल इक्वेशन, आप ऐसा जो भी क्वेश्चन है आप इसको हर पैटर्न पे मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो ये मैंने अभी मेंशन किया है, इस पे अगर कोई भी क्वेश्चन होता कभी आएगा 25% कंप्लीशन या 80% कंप्लीशन टाइम दिए होंगे और हाफ लाइफ आपको कैलकुलेट करना है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय द रेट एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग k, then putting the value of k in the half life period for first order reaction, you can calculate the t half। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डायरेक्ट जो है, अगर आपको क्वेश्चन का सिर्फ पैटर्न हम वहां पे आपको डिस्कस कर रहे हैं, आप ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, यू कैन सॉल्व इट। कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड of a first order reaction, of a first order reaction, what is the rate constant, what is the rate constant, sorry, when the rate constant is 5 per year, ये दिए गए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको क्या है कि वो रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं 5 पर ईयर और हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। एज यू नो कि हाफ लाइफ जो होंगे टी हाफ ही क्या हो गया 0.0693 बाय के, तो यानी सॉरी ये 0.693 बाय के, दैट इज 0.693 बाय 5 पर ईयर, और टी हाफ इज इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये जितना है ये ईयर होगा, यानी लगभग राउंड ऑफ 0.139। तो ये पैटर्न जो है, इस पैटर्न पे हम मतलब एक सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन का भी आप देख लिए कि डायरेक्ट जो है सो आप इस पे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे और डिफरेंट टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो है जो मैंने आज डिस्कस किया है कि व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट वैल्यू फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो
तो उस पर जो आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट। और इसके बाद और डिफरेंट टाइप के जो IITs में या नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन, आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट लाइव क्लास। सो थैंक यू।